2026. This is the very first event of 2026 and it's so beautiful because it is starting with love, प्यार, इश्क और मोहब्बत. इसकी खूबसूरत पूरा बंद कर दो. अब ठीक है? बेटर? हाँ, 0 कर दीजिए. This event is for you, by you. आपकी अटेंशन भी चाहिए और प्यार भी. उसके लिए आपको या तो साथ में हमें सुनना भी पड़ेगा. आपको फिर हम सुनेंगे. So, good evening everyone once again. Today we gather here to speak about a feeling that shapes our lives quietly yet powerfully, and that's love. To complete this feeling, we just require respect in differences, not just romance, but patience also, and understanding in silence. So love is not just a feeling, it's a choice we make every day to care, to respect, and to understand. Love does not always speak loudly. Sometimes it is felt in silence. So जब हम कहते हैं ना कि प्यार है, तो वो बेजान से हो सकता है, इंसान से भी हो सकता है. और जो इश्क है वो काम से भी होता है और इंसान से भी होता है. और मोहब्बत जिससे भी हो वो समंदर सी गहराई लिए होता है. सो उम्र का प्यार से लेना देना नहीं है. प्यार कभी भी हो सकता है, बस रूप बदलता रहता है. प्यार चेहरे से नजर ना हटना, हाथों में हाथ लिए दूर तक चुपचाप चलना, निशब्द निहारते हुए चलना, साथ निभाना प्रेम को परिभाषित करता है. वर्तमान समय में प्रगति की सीढ़ियां तो चढ़ ली हैं, लेकिन प्रेम जरा सा कम हो गया है. तो चलिए आज इस मंच पर, इस इवेंट में जो सुमिता मिश्रा मैम, डॉक्टर सुमिता मिश्रा मैम ने जो सुझाया है टाइटल प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव, इसके आधार पर हम सब ये मन ही मन ठान ले, प्रण कर ले कि कविताओं के माध्यम से कि प्रेम होना ही नहीं, रहना भी चाहिए. ये सबसे जरूरी है. सो हमारे इस इवेंट को कंटिन्यू करते हुए मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस शुभांगी, इफ शी इज देयर, टू रिसाइट हर पोएम. सो शुभांगी, आप प्यार पर बोलने वाली हैं. आपके लिए कुछ पंक्तियां, जब तक आप मंच पर आती हैं तब तक आपके लिए ये पंक्तियां. The moment I call out your name, please start to walk. I'll be reciting a few lines I have selected for you, all of you, and I will be reciting those lines for you. So शुभांगी, दिल पर हुकूमत चला रहा है और पूछता है रजा क्या है. दिल पर हुकूमत चला रहा है और पूछता है रजा क्या है. आखिरी वक्त लब पर तेरा नाम रहा. इश्क खुदा है तो अज़ा क्या है. शुभांगी. Hi everyone, I'm Shubhangi. Many of you know me and I'm not so regular here, unfortunately, as I would like to be, but CLS is very close to my heart. Here's my poem. I hope you enjoy it. It's titled Romance. There's a hand pump down the road, lonely, languorous. When I lift the handle, I pump it 6 times till the spout sputters, and then spring to catch the tipsy trickle. An errant drop escapes, tickling its way down my throat, parched inside and out.
before being sucked by thirsty cells. One more follows, and the wet trail, then one other and another, one after the other, like luminous little ants, until the stream takes the path of least resistance to the well in my spirit, cracks open my covering heart to drench it in cold warmth, to quench an idle romance that has been resting, nesting, unmapped in its dark refuge for ages. A squirrel squeaks as she drinks from the pool of leftover water in a crevice near my toes and gives me a suspicious look further along. A sparrow strolls across the narrow but miry road to nowhere. Maybe the squirrel and the sparrow saw someone pump this hand pump for a lonely girl who wiped her face afterwards with a wet sleeve, and just perhaps the air they breathed out, the metal their hands kissed, the ground they walked on became sacred. Now their offering nests in my heart and is being pumped through my veins. Thank you. मैं इनके लिए पंक्तियां ढूंढने में इतनी खो गई कि मैं इनके बारे में बताना भूल गई. So I would like to tell, she is a wonderful writer, poet, and she loves to write content, copy as well as social commentary. She has written for magazines, newspapers, and she is well versed in story writing, which has won many awards. She has written Suburban Review, Australia, and for Tehelka as well. She conducts writing workshops, and World of Word is her love. The title of her poem is But Obvious Romance. So it's a beautiful title and it's a beautiful start. Thank you so much, Shubhani. आभार शेदी. प्यार, इश्क और मोहब्बत की इस महफिल में आप सबका स्वागत है. अब जिस शख्सियत को मैं आवाज़ देने वाली हूँ वो है हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत राजिंदर मैम, राजिंदर कौर सराओ जी. पंजाबी में लिखती हैं. अभी इनकी कुछ दिन पहले ही एक पुस्तक आई थी, वर्जित राहां दा सफ़र. बहुत ही प्यारी पुस्तक, और उसमें इन्होंने एक वो सभी मतलब कि स्त्रियों को समर्पित है वो पुस्तक जिनके लिए बहुत सी राहें वर्जित हैं. तो मैं इनके लिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगी. हयात में जीने का मश्क चाहिए, हयात में जीने का मश्क चाहिए, एक बार सबको करना इश्क चाहिए. उलझा रहे मुझे सुलझाने की खातिर, उलझा रहे मुझे सुलझाने की खातिर, ताउम्र सिलसिला करने वाला शख्स चाहिए. और बहुत अदब से, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से मैं राजिंदर मैम को आवाज़ दे रही हूँ. मैम आइए, आपका स्वागत है. जोरदार तालियां एक बार और बजा दो. हो गया तालियां. हेलो, नमस्कार सबको. मोहब्बत की इस महफिल को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. हाँ जी. अब से कोई कहता है खुदा का नूर है मोहब्बत, कोई कहता है खुदा का नूर है मोहब्बत, कोई कहता है इंसान का जुनून है मोहब्बत, कोई कहता है
कोई कहता है इंसान का जुनून है मोहब्बत, किसी महफिलों में तो पूजी जाती है, पर असल जिंदगी में तो गुनाह है मोहब्बत। मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम को तरसता एक पल। हाँ जी। दस्तक हो दरवाजे पर और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। हाँ जी। दस्तक हो दरवाजे पर और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। झांक कर जो देखे चिलमिन से और तुम मुस्कुराओ, कभी ऐसा भी हो। जलती सी किसी दोपहर में, तन्हा सी किसी शाम में, यादों के बदले तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। गरजते बादलों में, सावन की बूंदों में, बहते पानी में, जब सब कुछ ही तन्हा हो और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। सुनसान सी बिरहा की रातों में जब अश्क बहने लगे, सुनसान सी बिरहा की रातों में जब अश्क बहने लगे, चुपके दबे पांव शहर के बदले तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। दिलकश सी किसी शाम में, उदास से उन माहौल में, दिलकश सी किसी शाम में, उदासी के उस माहौल में, जब आंसू भर आए, आंसू के बदले तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। टिमटिमाती सी दिए की रोशनी, टिमटिमाती सी दिए की रोशनी, डगमगाई सी उस परछाई में तुम नजर आ जाओ, कभी ऐसा भी हो। कभी ऐसा भी हो ऐ मेरे हमनशी, कभी ऐसा भी हो ऐ मेरे हमनशी, दर्द हमारा हो और अश्क तुम्हारे, मौत हमारी हो और कांधा तुम्हारा, मौत एक पल ठहर जाए, कभी ऐसा भी हो, कभी ऐसा भी हो, कभी ऐसा भी हो। बहुत सुंदर राजेंद्र मैम। सुनसान सी बिरह की रातों में जब अश्क बहने लगे तो आंसुओं की जगह तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। बहुत अच्छी पंक्तियां, जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। अब मैं फिर अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर स्मिता मिश्रा मैम का, और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मैम के लिए। प्रेम, इश्क और मोहब्बत की आज महफिल सजाई है मैम ने, तो बहुत ही मैं अदब से, सम्मान से, सबकी तरफ से मैम आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं जिस सुमिता मैम के लिए मैंने बोलना है। आ जाओ फिर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ। नमस्कार स्मिता मैम, आपके लिए मैं दोबारा बोल रही हूँ और मेरा दिन था कि आप आए तो मैं सुनाऊं। इन्होंने सुनी नहीं मेरी बात। अब इनको भुगतना पड़ रहा है कि ये मुझे टाइम दे रही है। हाँ जी, चलो। कोई कहता है खुदा का नूर है मोहब्बत, कोई कहता है इंसान का जुनून है मोहब्बत, किसी कहानियों में तो पूजी जाती है, पर असल जिंदगी में तो गुनाह है मोहब्बत। हाँ जी, मेरी कविता का शीर्षक है प्रेम को तरसता एक पल। आज मैं हिंदी में सुना रही हूँ, पंजाबी में नहीं। हाँ जी, ये सिर्फ सुमिता मैम के लिए है। प्रेम को तरसता एक पल, दस्तक हो दरवाजे पर और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। दस्तक हो दरवाजे पर और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। झांक कर जो देखे चिलमिन से और तुम मुस्कुराओ, कभी ऐसा भी हो।
जलती सी किसी दोपहर में, तन्हा सी किसी शाम में, यादों के बदले तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। गरजते बादलों में, सावन की बूंदों में, बहते पानी में, जब सब कुछ ही तन्हा हो और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। सुनसान सी बिरहा की रातों में जब अश्क बहने लगे, सुनसान सी बिरहा की रातों में जब अश्क बहने लगे, चुपके दबे पाँव, शहर के बदले तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। हाँ बस खत्म करती हूँ। दिलकश सी किसी शाम में, उदासी के इस माहौल में जब आंख भर आए, अश्कों के बदले तुम आओ, कभी ऐसा भी हो। टिमटिमाते सी दिए की रोशनी में, डगमगाई सी उस परछाई में तुम नजर आ जाओ, कभी ऐसा भी हो। कभी ऐसा भी हो ऐ मेरे हमनशी, दर्द हमारा हो और अश्क तुम्हारे, मौत हमारी हो और कांधा तुम्हारा, मौत एक पल ठहर जाए और तुम आओ, कभी ऐसा भी हो, कभी ऐसा भी हो, कभी ऐसा भी हो। अब मैं जिसको आवाज़ देने वाली हूँ, बहुत ही सभी सखी हैं, वो बहुत ही प्यारी सखी हमारी नेक्स्ट पोएट है। एमए इकोनॉमिक्स के साथ साथ लिटरेचर में भी उन्होंने अपने लिटरेचर ने उन्हें अपने प्रेम पाश में जकड़ लिया। केन्या में जाकर भी केन भारती की स्थापना की और अपना योगदान दिया। कविता को हृदय से उपजाकर पन्नों पर उतारती है और कई पोइट्री सेशन में पार्टिसिपेट करती है। सिर्फ यही नहीं, दूरदर्शन आकाशवाणी पर भी अपने काव्य प्रेम दर्शाती रहती है। बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से मैं शैला जी को आवाज़ दे रही हूँ और कुछ पंक्तियाँ शैला जी के लिए। झड़ते हैं गुल अरमानों के अक्सर, झड़ते हैं गुल अरमानों के अक्सर, दबा हुआ सा कहीं एक पलाश रह गया, तब तसव्वुर भी रूबरू होने को है, मेरी मोहब्बत का कहीं हिसाब रह गया। आइए शैला जी। आप सबका स्वागत है प्यार इश्क मोहब्बत की महफिल में। आज मेरी आवाज़ थोड़ी दबी एक शेर से शुरुआत करती हूँ। जुर्रते इजहार में क्यों न हो ताखीर, जुर्रते इजहार में क्यों न हो ताखीर, वल्लाह जब वो समझते नहीं इश्क की तासीर। समझते ही नहीं इश्क की तासीर। अब मेरी कविता। थामा था कभी हाथों में हाथ को, थामा था कभी हाथों में हाथ को, कहा था तुमने जो एक बात को, कहा था तुमने जो एक बात को, हाँ याद है मुझे आज भी बात वो, जो तुमने कही थी उस ढलती शाम को, लेकर हाथों में हाथ को, कि बस तुम मेरी इंतहा हो, कि बस तुम मेरी इंतहा हो और मैं तुम्हारी इब्तिदा। खिल गया था दिल सुन के इश्क के इस इजहार को, खिल गया था दिल सुन के इश्क के इस इजहार को, पा गई थी मैं मंजिल उस लम्हे उस शाम को, पा गई थी मैं मंजिल उस लम्हे उस शाम को, भुला ना सका फिर दिल कभी उस ढलती शाम को। आज भी रूह को मेरी करता है सैराब वो, आज भी मेरी रूह को करता है सैराब वो, जब भी याद आता है तुम्हारा प्यार भरा इजहार वो। जब भी याद आता है प्यार भरा इजहार, इजहार और इकरार, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं प्यार में। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पोएटेस who is a woman of substance, PhD and double MA, has worked in the Committee of External Affairs, Lok Sabha Secretariat. She is an editor of an education magazine, a writer, poet, has won many prizes. She conducts creative writing and skill workshops. And last but not the least,
मैं थोड़ा सा डर भी रही थी इन्हें बुलाते हुए. शी इज येलो बेल्ट इन ताइक्वांडो. मिस देवयानी, आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप आएं और यहाँ बोले. और आपके लिए जो पंक्ति है वो ये है: वो फासलों में भी मुझे पाएगा, मेरे इश्क में ऐसी ताजगी है, वो चुअन को मेरी सहला रहा है, मुझे पाने की ये दीवानगी है. मिस देवयानी. Thank you, Shali. So this poem is about, it's difficult to express in words, love, but sometimes we express through dance, from the Ras Leela to the modern dances to the women who celebrate our festivals. So it's about love and also my love for dancing. So when I'm reciting, just imagine all those. Okay. A bountiful bouquet of love unfurls its petals wide. A dance of hearts, our emotions with you abide. The divine love of Radha Krishna burns like an eternal flame. To the honey sweet endearments of a precious lover's name. In childhood's innocence, sweet bubbly friendships delight. In teenage love, a whirlwind of emotions takes flight. As youth unfolds, romantic feelings sweep us off our feet. A maelstrom of ardor dances to a rhythmic beat. We wander in enchanted fairy realms, our auras shimmer to lush green hills and a shining kaleidoscope of colors. A woman's true strength shines bright like a celestial hue. Her sensuality and oomph set her moves in a sensual groove. In womanhood, love's passionate flame survives. To self-love and completeness for which we strive. We live our best lives dancing like petals in the breeze, spreading the fragrance of love that sets our souls free. The love for dance leads us through moments old and new. The rhythm of romance in youthful steps to gentle moves. So come, let's celebrate love and feel alive. As we tango together, our hearts will thrive. Thank you. थैंक यू देवयानी मैम. रिदम ऑफ रोमांस, कितनी खूबसूरत बात की है. अब अगली हमारी पोइट है, उनको मैं आवाज़ दे रही हूँ. शी इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश इन पंचकुला. तकरीबन सभी भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सब में लिखती हैं. बल्कि इसे लिखती क्या, बल्कि इसे सुरों में भी पिरोती हैं. और इनकी मंत्र मुग्ध करने वाली आवाज़ हम सब ने पहले भी सुनी है. और अवार्ड्स की एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं नहीं पढ़ रही हूँ. और आज हमारी बिजी इतनी है, फिर भी आज हमारी मोहब्बत के कारण चली आई हैं. तो मैं बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से स्वागत करती हूँ हरप्रीत मैम का. और मैम के लिए दो पंक्तियाँ. नहीं फिक्र मैं तुम्हारी मानूस हूँ फिर भी, नहीं फिक्र मैं तुम्हारी मानूस हूँ फिर भी, सरे रहा मेरी फिक्र में रहे हो तुम. आइए मैम, आपका स्वागत है. जोरदार तालियां होनी चाहिए. Thank you so much for such a warm and lovely introduction. मैं सब ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ. ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਡਲੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ lover and beloved, true love, wishful yearning and longing to stay together in a night studded with stars. तो उस तो पहला दो बड़े खूबसूरत शेर हैं, पर मैं सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी. आवाज नहीं है जी. हाँ जी. इको कर रही हो. मैं माइक यूज कर लेती हूँ. Because that mic goes into camera. तो मिर्ज़ा गालिब के शेर से शुरुआत करूँगी.
मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। जी। तारे आधी रात होवे, तेरा मेरा साथ होवे, तू होवे मैं होवा, होर ना कोई नाल होवे। तारे आधी रात होवे हो, चल मेरे सोने आवे, तेरी मेरी प्रीत च, चल नाल चाननी दी, फुल्लां दी महक नाल। चल मेरे सोने आवे, दिलां दे मेर मां, तेरे बाजू एक पल भी आंदा ए सरूर ना। तारे आधी रात होवे, तेरा मेरा साथ होवे, तू होवे मैं होवा, होर ना कोई नाल होवे। तारे आधी रात होवे हो, दिलां दी प्रीत चलना, रूह दी ज़बानी कहा, जन्मां दी सांझ लई रब तो दुआ मंगा। मेरे सुख होण तेरे, तेरे दुख होण मेरे, प्यार दा ए सौदा बड़ा लगदा ए मैनू खरा। तारे आधी रात होवे, तेरा मेरा साथ होवे, तू होवे मैं हुआ, होर ना कोई नाल होवे। शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तेरे दुख होन मेरे, मेरे सुख होन तेरे। मुझे लगता है सबसे खरा सौदा यही है और यही प्यार का तकाजा भी है। So, an IIT Delhi technologist and former corporate COO, he has written many poems, write-ups to win prizes, awards, accolades and hearts as well. हम इनकी कलम का जादू अक्सर CLS चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के ग्रुप में अक्सर देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इनकी एनालिसिस में माहिर हैं ये। अगर आप एक पंक्ति लिखते हैं तो आप ये उनका पूरा एनालिसिस काइंड ऑफ पोस्टमार्टम, इफ आई एम नॉट यूजिंग द बैड वर्ड, कर देते हैं। और यस, और खूबसूरती से करते हैं, शब्द भी बहुत प्यारे चूज करते हैं। तो अपने प्यार के इजहार के लिए मुझे नहीं मालूम कि इनका प्यार कौन है, कहाँ है, कैसे है, ये इन्होंने आज किसके लिए लिखा है, nobody knows. So निशांत सर, ये पंक्तियां आपके लिए हैं। इंतजार को इंतहा की कगार पर पहुंचाकर, इंतजार को इंतहा की कगार पर पहुंचाकर पाई है मैंने तेरी ख्वाहिश की इब्तिदा। हाँ, थैंक्स अ लॉट। ये तो मैं सुन ही नहीं पाया जो मेरी तारीफ कर रही थी, बट शायद ठीक थी, क्योंकि तालियां कम बजी, एक बार और बच जानी चाहिए। थैंक्स अ लॉट। बेसिकली गायक या राइटर या कोई ऐसा हूँ नहीं, और हरप्रीत जी के तरुणम में मेरे को कुछ और मन कर गया कि भाई सुना है हम भी कुछ, ये जो लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत के ऊपर तो एक गाना, चलो जो भी समझ आता है, इसमें वर्ड प्यार तो आ ही रहा है और कुछ भी आ रहा है।
और इसके बाद मैं अपनी कविता भी पढ़ूंगा भाई। 2 मिनट के अंदर 2 मिनट में 4 पढ़ो। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से ये बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी हर गम से ये बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। प्यार दीवाना होता है, बस ताना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर अजी लाख चुराए कोई सनम से, आ ही जाता है जिस पे सुमिता जी दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। थैंक यू। आपकी कविता उधार रही हम पर, लेकिन हमने जैसे कहा था 2 मिनट में आए, आप चाहे तो 4 पंक्तियां पढ़े, चाहे गीत चाहे, पर बहुत खूबसूरत आपने इस महफिल में एक रंग और आशिकी का पैदा कर दिया। थैंक यू सो मच निशांत जी। हमारी अगली पोइट के बारे में 2 बार स्टेट अवार्ड लेने वाली हैं, प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, पोएट, राइटर, काउंसलर, कलर होल्डर और शिमला की रानी, जो हर बार हमें एक नए जुनून से इंस्पायर कर देती हैं। इनकी तारीफ में शायद लफ्ज थक जाएंगे। इनके हासिल के साथ नाइंसाफी हो सकती है क्योंकि फहरिस्त ज़रा बड़ी है। सो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी के प्रेम में पढ़कर हमें उर्दू की गज़लों से भी लुभा जाती हैं हर बार ऑनरेबल गुरदीप गुल जी। आपके लिए जो पंक्तियां हैं, क्योंकि ये उर्दू में लिखती हैं और साथ साथ हमें उर्दू के शब्दों का अर्थ भी समझाती हैं। सो मैंने काफ़ी कोशिशें की हैं उर्दू में भी, उनमें से एक ये, तेरे अहद का इकरार ले बैठा, ना खत्म हो वो इंतज़ार ले बैठा, कासिर दिल मुलाकात का मुंतज़र, कासिर दिल मुलाकात का मुंतज़र, उस पर ख्वाबों का खुमार ले बैठा, बाज़ मोहब्बत का मुतालबा करते, बाज़ मोहब्बत का मुतालबा करते, फ़कत शिकवों का बाजार ले बैठा, लफ्ज़ मुड़ते हैं तेरी जानिब क्या करे, लफ्ज़ मुड़ते हैं तेरी जानिब क्या करे, दिल का ऐसा इख्तियार ले बैठे। थैंक यू गुरदीप जी। शुक्रिया, सबको आदाब। शैली का बहुत बहुत शुक्रिया इतना पुरतकल्लुफ़ इंट्रोडक्शन देने के लिए, मेरा तारुफ कराया। तो एक शेर मैं अर्ज़ करूँगी, मोहब्बत शायरी, सुमिता जी को बिलेटेड बर्थडे, तो उनके लिए चलो मैं एक मोहब्बत और इश्क के ऊपर एक शेर, उसमें 2-3 अल्फाज उर्दू के हम बता देती हूँ। वज़ू जो पवित्र होने को कहते हैं नमाज से पहले, और तिलावत जो गोश्ती विचार को कहते हैं, करना विचार कर, और ज़कात चैरिटी, और लम्स जो है वो स्पर्श को कहते हैं, टच। तो उस हवाले से एक शेर अर्ज़ करती हूँ। वज़ू तिलावत ज़कात है गर बंदगी, वज़ू
तिलावत ज़कात है गर बंदगी, तो लम्स मोहब्बत में है मरकज़े ज़िंदगी। लम्स मोहब्बत में मरकज़े ज़िंदगी। एक शेर और, वो जो हेल्पलेसनेस होती है बिलवड के साथ, तो उसके हवाले से, वो कुर्बतों में फासले बनाए रखता है। कुर्बत नियरनेस कहते हैं। वो कुर्बतों में फासले बनाए रखता है, मेरा दिल है उससे गले लगाए रखता है। तो ये हेल्पलेसनेस, वो कुर्बतों में फासले बनाए रखता है, मेरा दिल है उससे गले लगाए रखता है। तो उसी हवाले से एक गजल के चंद मिसरे। तो साया फिगानी परछाई को बोलते हैं। फर्ज करती हूँ, ख्यालों पे तेरे साया फिगानी ठीक नहीं, ख्यालों पे तेरी साया फिगानी ठीक नहीं, खुद फनाही तक वफा निभानी ठीक नहीं, खुद फनाही तक वफा निभानी ठीक नहीं। मेरी गज़लों को है लाजिम तेरी कुर्बत की गिज़ा खाना, कुर्बत नियरनेस का खाना। मेरी गज़लों को है लाजिम तेरी कुर्बत की गिज़ा, तुम्हें भुलाने की बातें बनानी ठीक नहीं, तुम्हें भुलाने की बातें बनानी ठीक नहीं। सिवाय गफलत के कुछ भी ना हुआ हासिल, मीन्स उसकी तरफ से बेरुखी मिली, तो सिवाय गफलत के कुछ भी ना हुआ हासिल, अब उम्मीद की उम्रें बढ़ानी ठीक नहीं, अब उम्मीद की उम्रें बढ़ानी ठीक नहीं। बेसबब तेरे दिए गम पे क्यों तड़प उठे, बेसबब तेरे दिए गम पे क्यों तड़प उठे, जुनू में रत्ती भर भी नातवानी ठीक नहीं। नातवानी कमजोरी में कहते हैं, अगर जुनून है तो फिर तड़पना कैसा, फिर तो सब हो। तो बेसबब तेरे दिए गम पे क्यों तड़प उठे, जुनू में रत्ती भर भी नातवानी ठीक नहीं। जो मन मुटाव का पर्दा है उसे फाश करें, जो मन मुटाव का पर्दा है उसे फाश करें। मोहब्बतों में लंबी बदगुमानी ठीक नहीं, मोहब्बतों में लंबी बदगुमानी ठीक नहीं। तेरी जानिब से कभी आएगी सदाए वफा, तेरी जानिब से कभी आएगी सदाए वफा, इसी भरम में जिंदगी गंवानी ठीक नहीं, इसी भरम में जिंदगी गंवानी ठीक नहीं। तो मक्ता अर्ज कर रही हूँ, मेरा नसीब रहा रुसवाई तन्हाई, मेरा नसीब रहा रुसवाई तन्हाई, खुदाया गुल पे इतनी मेहरबानी ठीक नहीं, खुदाया गुल पे इतनी मेहरबानी ठीक नहीं। तो तेरे ख्यालों पे तेरी साया फिगानी ठीक नहीं, खुद फनाही तक वफा निभानी ठीक नहीं। शुक्रिया। किसी भ्रम में जिंदगानी गंवानी ठीक नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उर्दू भाषा तो वैसे ही नफासत के लिए जानी जाती है। एक बार जोरदार तालियां गुरदीप मैम के लिए। अब मैं जिनको आवाज दे रही हूँ वो जिंदगी के कई अफसाने साथ लेकर चलती हैं। From the serenity on her face, one can easily make out that she is a poet writer. इनकी बोलती आंखें अपनी खामोशी को बयां करती हैं। इनकी आवाज़ में प्यार की सदा है, एक अफसाना है। सुनीत मदान जी। मेरे पन्नों पर तेरे ख्याल का बिखरना बरबस, मेरे पन्नों पर तेरे ख्याल का बिखरना बरबस, मेरे शब्दों को परेशान कर गया। आइए आइए सुनीत मदान जी, जोरदार तालियां सुनीत जी के लिए। यादों का अफसाना, यादों का, कोई नहीं, आपके लिए एक आंखों का अफसाना भी लिखेंगे। वो जुगनू की रोशनी में तुम्हारी आंखों का टिमटिमाना,
वो जुगनू की रोशनी में तुम्हारी आंखों का टिमटिमाना, वो संदली सी धूप में तुम्हारे चेहरे का खिलखिलाना, वो सर्दियों की बारिश में तुम्हारे होठों का फड़फड़ाना, रह रह कर याद आता है मुझे वो गुजरा जमाना। वो झूठ मूठ से तुम्हारा रूठना सताना, वो झूठ मूठ से तुम्हारा रूठना सताना, वो छुप छुप के तुम्हारा मिलने को आना, वो झुकी झुकी नजरों से तूफान उठाना, हाय रह रह कर याद आता है वो गुजरा जमाना। वो चलने से तुम्हारी पायल का छन छनाना, वो चलने से तुम्हारी पायल का छन छनाना, वो ओढ़नी में तुम्हारी सितारों का चमचमाना, वो आई लव यू तुम्हारा कान में फुसफुसाना, कैसे कहूँ कितना याद आता है वो गुजरा जमाना। वो ख्वाब बन तुम्हारा मेरी नींदें चुराना, वो ख्वाब बन तुम्हारा मेरी नींदें चुराना, वो हल्के से तुम्हारा मेरे बालों को सहलाना, वो हवाई चुंबन से तुम्हारा मेरी धड़कनें बढ़ाना, मेरी नस नस में समाया है वो गुजरा जमाना। वो आज भी तुम्हारा, वो आज भी तुम्हारा अंदर मेरे एहसास जगाना, वो आज भी तुम्हारा मेरे अंदर एहसास जगाना, वो हवा बन तुम्हारा मेरे अकेलेपन में साथ निभाना, वो हवा बन तुम्हारा मेरे अकेलेपन में साथ निभाना, वो कुसुम बन तुम्हारा मेरी जिंदगी महकाना, भूले से भी नहीं भुला सकता मैं वो गुजरा जमाना। तुम्हारी यादों से निखरा है मेरे दिल का आशियाना, तुम्हारी यादों से निखरा है मेरे दिल का आशियाना। शुक्रिया। बहुत याद आता है वह गुजरा जमाना, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब मैं जिनको आवाज दे रही हूँ वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, पर फिर भी खिलखिलाहट हंसी में, खनखनाहट आवाज में एक वंडरफुल टैलेंट, और शी इज ए नेशनल इंटरनेशनल विनर इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। पता नहीं कितनी किताबें आ चुकी हैं, 10 से भी ज़्यादा। रोज इनकी कविता अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट होती रहती है, क्योंकि इनके लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे भी, मैं इनके लिए क्या बोलूं। हाँ, इन्हीं से पूछ लेंगे। 2 पंक्तियां लिली मैम के लिए। खुद को समेटने की काबिश, खुद को समेटने की काबिश मुझे तुझ में तकसीम कर जाती है। बहुत अदब से, बहुत सम्मान से, बहुत प्यार से मैं लिली मैम को आवाज दे रही हूँ। आइए लिली मैम। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर अपनी कविता से पहले। बेखुदी में भी तुमको भुला ना सके, बेखुदी में भी तुमको भुला ना सके, गम के आलम में हस्ती मिटा ना सके। हम परस्तिश तेरी करके शाम सहर, हम परस्तिश तेरी करके शाम सहर, इश्क का बाब तुझको पढ़ा ना सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। And the title of my poem is Love Serpent. Yeah. Love poised, it coils under the peepal tree, an anaconda belching silently, frozen petals of pink cosmos euthanized in fossil repose. It was love lying in wait, not a sound from its tremulous mouth,
not a syllable slipping out of the strained vocal cords. Love stretched languorously, agile, nimble-footed, ready to pounce a cat on a hot tin roof. Love poised on dew-drenched petals, suffused in the midnight moonbeams of his aura. Whispers have a metamorphosis. They scream in the slanderous tones. Love prefers the whirlpools in your deep eyes, listening to simmering ghazals, gazing at the winking stars. Let love adorn you in emerald hues, anoint you with green olive extracts, crush the ether from crimson red roses. Crush the ether and saffron to your milky glow. Let love seep in unabated, trickling into your aching soul. Thank you. Brimming with love. ऐसा लगता तो नहीं है भाई। Thank you so much, Lily ma'am. Such wonderful poem. So, जिस पोइट का नाम मैं अभी बोलने जा रही हूँ, ये पोइट कहानियों में जीती हैं, कविता में बह जाती हैं और आर्टिकल्स में अपनी गहन सोच को उतार कर रख देती हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, मुल्तानी और लैंग्वेजेस अभी आने को हैं। मैं अपने सारे शब्द उड़ेल कर लिटरेरी वर्ल्ड में नाम और कंटेंटमेंट दोनों कमा रही हैं। सो शी इज़ एन एडवोकेट और बस शायद कोर्ट में जिरह करती होंगी, लेकिन शब्दों से जिरह नहीं करती, बल्कि कहती हैं यू मे प्रोसीड नाउ। मिस नीलम नारंग, प्लीज काउंसिल। इनके लिए जो पंक्तियां हैं थोड़ी सी शायद शरारत लिए हैं। छींटे हकीकत के मारो यारो, छींटे हकीकत के मारो यारो, कुछ वक्त हुआ दिल होश में नहीं है, ना छीनना मेरा तकिया खुदा के लिए, ना छीनना मेरा तकिया खुदा के लिए, मेरा महबूब आज आगोश में नहीं है। मिस नीलम। बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार। तुझसे इस कदर इश्क कर बैठा हूँ, तुझसे इस कदर इश्क कर बैठा हूँ मैं, ना कोई पल छिन तेरे बगैर बैठा हूँ। ज़हन में इस कदर बसा लिया है तुझे, खुद का दिल चैन सब गवा बैठा हूँ मैं। एक गजल। अब तुझसे यूं बिछड़ने का क्यों मलाल आया, अब तुझसे यूं बिछड़ने का क्यों मलाल आया, होकर जुदा भी मुझको तेरा ख्याल आया। अगला शेर है, रहमत रहे तुम ही पर यारा बरसती खुदा की, रहमत रहे तुम ही पर यारा बरसती खुदा की, तेरे ही इश्क में जीना बेमिसाल है। गर प्यार था निभाने में क्यों हुई यूं मुश्किल, गर प्यार था निभाने में क्यों हुई यूं मुश्किल, क्यों कर ज़हन में फिर से हरदम सवाल आया। शुक्रिया। ये सरहदें या नफरत, ये सरहदें या नफरत भुला दी इश्क में पड़, ये सरहदें या नफरत भुला दी इश्क में पड़, आशिकी को ना नजर ये जी का जंजाल है, आशिक को ना नजर ये जी का जंजाल है। महफिल में तो नहीं था कोई वजूद तेरा, महफिल में तो नहीं था कोई वजूद तेरा, जब शून्य में निहारा तेरा जलाल आया। अगला है, मुश्किल हुआ यूं मिलना सरहद पे अब है पहरे, मुश्किल हुआ यूं मिलना सरहद पे अब है पहरे, मिलते हैं दिल से उत्तर भी बाकमाल आया, मिलते हैं दिल से उत्तर भी बाकमाल आया। और मक्ते का शेर है, सिखा दिया हुनर तुमने प्यार में लुटा सब,
सिखा दिया हुनर तुमने, प्यार में लुटा सब, जिंदा दिली से जीकर नीलम जमाल आया। जिंदा दिली से जीकर नीलम जमाल आया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका जमाल जिंदा दिली से जीने में है, सब जानते हैं। आपकी ही पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए, किसको भूल जाना है जब ये सोचा, किसको भूल जाना है जब ये सोचा, जिसको भूलना था वो याद बेहिसाब आया। She has a great desire to love and to be loved. She paints her thoughts along with playing with words. Her work can be seen in many anthologies, and she has won many awards, prizes because of her beautiful poetry creations. Her words pours out of heart and oblige the blank pages. Sorry, Steffi Bhadeja, ये पंक्तियां आपके लिए। हाँ, मैं तालियों का इंतजार कर रही थी। मेरी सोच में वो सोचता रहा, मेरी फितरते वो बाँचता रहा, निशब्द रहा, कह ना सका, प्यार का यही तकाजा रहा। मैं लिखता रहा, वो पढ़ता रहा, मैं बिखरता रहा, वो समेटता रहा, मैं जाने लगा पर जा ना सका, प्यार का यही तकाजा रहा, प्यार का यही तकाजा रहा। स्टेफी, मंच आपका है। Thanks, Shelly ma'am, firstly for the lovely introduction. Okay, since we've gathered this afternoon to recite poems based on the theme of love, pyar, ishq, mohabbat, and it's the Valentine's week. So my poem is titled To Be Your Valentine. It's a relatively short piece, and it's about how couples exchange their greetings and kisses and hugs and whatever happens on in Valentine's week, basically. Yeah. So, and about the blossoming of love, and so without further elaboration, I'll go ahead with the recital. This is how it goes. Love burgeons amidst the radiant flowers of varied scents as he caresses his coy beloved tenderly. Kisses and hugs are soon exchanged besides the usual greetings and gifts. Every day for them is celebration of their youthful, passionate existence. But today, thanks to Saint Valentine, the duo gets an excuse, or perhaps a valid reason to celebrate. He boasts of fetching the moon and the stars for her, using numerous hyperboles and conceits, getting overwhelmed by his flamboyance and the beautiful poetic utterances. She forgets the norms of the world in no time and meets him defiantly. Appeased by his outpourings, but unable to express herself in delightful words like him, all she utters is, "Ah, how lucky I am to be your Valentine." Thank you. Thank you, Steffi. Every day for them is a celebration. बिल्कुल सच। पर अब मैं आवाज देने वाली हूँ, वो है व्यंग्यकार, कविता, कहानी लिखते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सेक्रेटरी की भूमिका में उतरकर शब्दों से कमाल दिखाते हैं। अभी पीछे उन्हें कैलाश आलूवालिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। गूढ़ समझ के साथ विश्लेषण में माहिर। आज देखते हैं अश्विनी जी ने पन्नों पर प्रेम मोहब्बत में कौन सा रंग उतारा है। दो पंक्तियां उनके लिए। शब्दों को मेरे कोई नहीं समझ पाया, शब्दों को मेरे कोई नहीं समझ पाया, एक वही था जो मौन को भी समझता था, एक वही था जो मौन को भी समझता था। आइए अश्विनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। कविता का शीर्षक है प्रेम प्यार मोहब्बत का संसार। हाँ मैं चाहता हूँ बनना, हाँ मैं चाहता हूँ प्यार मोहब्बत का टैगोर बनना, हाँ मैं चाहता हूँ प्यार मोहब्बत का टैगोर बनना, और टैगोर सम करना चाहता हूँ आम जन से आग्रह प्रेम का। लिखना चाहता हूँ कविताएं प्रेम की, प्यार में डूबी कहानियाँ लिखना चाहता हूँ, और लिखना चाहता हूँ उपन्यास मोहब्बत के कि पढ़कर उन्हें बोले दुनिया प्यार मोहब्बत की भाषा। रचना चाहता हूँ प्रेम संगीत में कि झूमे सब उस पर, और स्थापित करना चाहता हूँ शांति निकेतन से प्रेम निकेतन की, जहाँ पढ़ाया जाए केवल पाठ प्रेम का।
रचना चाहता हूँ मैं प्रेम गीत देश से इतर संपूर्ण विश्व का, और पाना चाहता हूँ विश्व सम्मान प्रेम में। कहलाना चाहता हूँ मैं गुरुदेव प्यार मोहब्बत का, और निमित्त इस प्रेम प्यार के जाना पड़े जेल अगर तो भी कोई हर्ज नहीं। और निमित्त इस प्रेम प्यार के जाना पड़े जेल अगर तो भी कोई हर्ज नहीं, करनी पड़े भूख हड़ताल तो हर्ज नहीं। मैं तो बस प्रेम पाना चाहता हूँ, बस प्यार लुटाना चाहता हूँ, प्रेम प्यार मोहब्बत का संसार बसाना चाहता हूँ, संसार बसाना चाहता हूँ। प्रेम मोहब्बत का संसार बसाना चाहता हूँ और लिखना चाहता हूँ उपन्यास मोहब्बत का। हम पढ़ना चाहेंगे, जल्दी से लिखिए अश्विनी जी। अब मैं जिनको आवाज दे रही हूँ एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रिटायर्ड पर संवेदनाओं को पिरोना बखूबी जानते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, कवि और फिल्म निर्देशक। बहुत ही अदब और सत्कार से सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और 2 पंक्तियाँ आपके लिए। जिद बदलती रहती है समय के साथ साथ, जिद बदलती रहती है समय के साथ साथ, पहले किसी को पाने की फिर उसको भूल जाने की। आइए सर, बहुत स्वागत आपका। हरजिंदर सिंह, आइए सर। थैंक यू वेरी मच। इस प्यार के माहौल में शुरुआत करेंगे। पहले खुदा के खुदाई से प्यार करना और फिर उसकी बनाई हुई ये जो हम बैठी है दुनिया से प्यार करना। तो ये एक प्रेयर ऑफ लाइट है पोएम की सूरत में। तो बाद में एक थोड़ा हिंदी में एक मुखरा दूंगा प्यार के मामले में, आंखों की अट्रैक्शन का, वो हिंदी में होगा और सुर में होगा। Prayer of light, oh God, give me light, guide my steps both day and night. I stand before you calm and still, with folded hand and humble will. Oh God, give me light. Keep my loved ones in my sight. Lead me home when paths are long. Give me courage, make me strong. Oh God, give me light. When my future feels unclear, wash my soul in the morning sun. Fill my heart with the hope and cheers. Oh God, hear my prayer. Softly spoken, pure and fair, bless Harjinder, help me rise. Let him soar across the skies. With folded hands I pray once more. Oh God, be with my light forevermore. Thank you. ये है आँखों के लिए, सिर्फ मुखड़ा ही है, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ। सोने नहीं देती तेरी आँखें, सोने नहीं देती तेरी आँखें, कोई बात करो, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, कोई मिलने के हालात करो, सोने नहीं देती। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Harjinder sir, for your beautiful poetry. She gave her best when she was delivering Vidyadan. She was at her best when she was surrounded by students and explaining chemical reaction. और मुझे लगता है तभी उनकी अपने हस्बैंड के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। She was always in love with the books, whether it was about imparting knowledge or getting knowledge for herself. She has won many prizes, awards, and now a freelance writer has been contributing her best in the world of literature. Alka Kansra ma'am. हर सुबह की जैसे नई हो धूप, हर पत्ते पर ताज़ी गिरे शबनम, हर रेत पर ताज़े निशां, तो क्यों ना हो आरज़ू, तो क्यों ना हो नई आरज़ू, एक नई उम्मीद, थोड़े से नए शब्द करने को तुझे बयां, थोड़ा सा ज़्यादा कि बन सके पुल तेरे मेरे दरमियां। अलका कांसरा। इस लव प्यार इश्क मोहब्बत वाली शाम को सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। एंड आई स्ट्रेट अवे कम टू द पोएम
I think as the age progresses, there are so many issues. Yeah. That I do agree. So, yeah. So the title of my poem is You, Me and the Seasons. You, Me and the Seasons. With a gentle breeze, the dry leaves falling from the trees, the auburn and the ember colors rustling and dancing in the breeze. You look into my eyes. You look into my eyes. I say autumn love. You smile and start laughing. I say autumn love. You smile and start laughing. Hot winds and blazing sun. Hot winds and blazing sun. We pause under the crimson canopy of a blazing gulmohar tree. Crimson crinkled petals all around us. You are looking at my big red bindi. You are looking at my big red bindi. I say summer love. You smile and kiss my bindi. I say summer love. You smile and kiss my bindi. The gentle rains wash the earth and the streets. Nature washed green. World created anew. Season of Bhutta, season of romance. Holding hands, walking in the rain. You steal a kiss under the umbrella. You steal a kiss under the umbrella. I say monsoon love. You break into a sudden jig on the road. I say monsoon love. You break into a sudden jig on the road. The winter fog and the cold icy winds. The winter fog and the cold icy winds. Sitting in the faded sun, eating peanuts. I shiver. I'm feeling cold. Your arms encircle me like my pashmina shawl, intoxicating me with your fragrant warmth, intoxicating me with your fragrant warmth. Looking at you, I say winter love. You smile and gently take me indoors. You smile and gently take me indoors. Surrounded by vibrant flowers, we are sipping tea in the garden. We are enjoying the beauty and tranquility. Flowers always create an intimate ambience. You look up with a broad, heartwarming smile. You look up with a broad, heartwarming smile. I laugh and say, spring love. I can see a rainbow in your laughing eyes. I laugh and say, spring love. I can see a rainbow in your laughing eyes. Thank you. Beautiful. It's a love of all seasons, and you are a woman of all seasons. You never forget to love, and this is so beautiful. Thank you so much, Alka ma'am. Thank you so much. A big round of applause for her. जो हमारी नेक्स्ट पोइट है, इनको ईश्वर से ऐसा प्रेम हुआ कि वो शब्दों में बन गई और सुरों में ढल गई. इन्हें जिंदगी से इश्क है, इन्हें जिंदगी से इश्क है और शब्दों से मोहब्बत है. इनकी मुस्कुराहट में संदेश है और आवाज़ में जादू. बहुत से पोइट्री सेशंस में पार्टिसिपेट करती आ रही हैं. अवार्ड सम्मान इनके हमराह हो लेते हैं. इनकी कविताएं रचनाएं छपती रहती हैं. होस्ट बहुत प्यारा करती हैं, बात बहुत प्यारी करती हैं, मुस्कुराती हैं तो फूल बिखर जाते हैं. इसलिए हम कहते हैं अन्नू रानी शर्मा जी, आप आइए और अपनी खुशबू बिखेर दीजिए. इनके लिए 4 पंक्तियां हैं. मन जो चाहे कभी तो पा जाए, मन जो चाहे कभी तो पा जाए, मैं काश कहूँ और वो आ जाए. बाजिए इश्क में हर बार जीते हम, तमन्ना है एक बार तो तू हरा जाए. अनुराग. बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने बुलाया, बहुत बहुत आभार. बहुत सुंदर संचालन करें आप दोनों. और मैम, मेरा पुराना दर्द है, कविता नहीं है. दर्द वही है कि इश्क पर मैं लिख नहीं पाती, तो दर्द पुराना, कविता नहीं. और इश्क पर जो लिखते हैं वो अक्सर इश्क को गुलाब कहते हैं. क्या क्या? गुलाब कहते हैं इश्क को. तो इश्क को जो गुलाब कहते हैं, इश्क को जो गुलाब कहते हैं, जिंदगी को किताब कहते हैं. इश्क को जो गुलाब कहते हैं, जिंदगी को किताब कहते हैं.
बात सीधी ये लिख नहीं सकते, बात सीधी ये लिख नहीं सकते, उलझा उलझा जवाब लिखते हैं, जिंदगी को किताब लिखते हैं। और इस किताब में इनके पहेलियां क्या होती हैं सुनिएगा। चश्म को झील, अश्क को मोती, चश्म को झील, अश्क को मोती, जुल्फ को काला आब लिखते हैं, जुल्फ को काला आब लिखते हैं। नज़्म इनकी लगे पहेली सी, नज़्म इनकी गुलमाम, नज़्म इनकी लगे पहेली सी, पर जो भी हो लाजवाब लिखते हैं। और बही खाता कैसा है। जख्म पाए हैं चैन खोया है, जख्म पाए हैं चैन खोया है, फख्र से ये हिसाब लिखते हैं, फख्र से ये हिसाब लिखते हैं। दर्द को नाज़ो नफ्स कहते हैं ये, दर्द को नाज़ो नफ्स कहते हैं ये, गम को ताजो खिताब लिखते हैं, गम को ताजो खिताब लिखते हैं। अब देखिए भजन लिखने वाले से कहा है कि इश्क पे लिखिए, तो वो क्या लिखेगा। हमको दिलबर में नूर दिखता है, हमको दिलबर में नूर दिखता है, तो उसे आफताब लिखते हैं, हम उसे आफताब लिखते हैं। और वापस उसी दर्द पे आती हूँ कि एक अणु इश्क कभी लिख ना सकी, एक अणु इश्क कभी लिख ना सकी, और आप बेहिसाब लिखते हैं इश्क को। इश्क को जो गुलाब कहते हैं, जिंदगी की किताब कहते हैं। बहुत ही सुंदर, अनु ने तो मंत्र मुग्ध कर दिया। ये भजन लिखने वाली कहाँ से अभी? महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जिस पोएट को आवाज देने वाली हूँ उनका तो सीधा रिश्ता ही दिल से है। पता नहीं डॉक्टर इतना अच्छा कैसे लिखते हैं। अपने ही फील्ड में सम्मान पाकर ये लफ्जों से दिल जीत रहे हैं। अभी इनकी पुस्तक मोक्ष द डिवाइन रेफरल दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में विनर रही है। तो सर मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ बोल रही हूँ। ना गुजरो बेनकाब, ना गुजरो बेनकाब, गुनाह खामखा हो जाएगा, मेरी आशिकी को समझो इश्क बेपनाह हो जाएगा, बेआबासी मन की गली लगे है आज, कुछ कदम चलो इधर भी कहकशा हो जाएगा। बहुत आदर बहुत सत्कार से मैं आवाज़ दे रही हूँ आदित्य रतन जी को। सर आइए। गज़ल पेश कर रहा हूँ, 2 मिनट का है इसलिए इसको जेंजी गज़ल बना दिया है। ये इश्क नया है, तेरे साथ ही जिंदगी का मज़ा है, तेरे साथ ही जिंदगी का मज़ा है, तुझे पा लिया है तू दिल में बसा है। खुली आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने, खुली आंखों से ख्वाब देखे हैं मैंने, ये जादू है कैसा, ये कैसा नशा है। लिखाई में मेरी सभी ढूंढते हैं, लिखाई में मेरी सभी ढूंढते हैं, किसी ने ना जाना वो तूने पढ़ा है। कि महफिल में अक्सर सभी पूछते हैं, कि महफिल में अक्सर सभी पूछते हैं, ना बोला जो मैंने वो तूने सुना है। थी नीलामी ऐसी न खरीदा किसी ने, ध्यान दीजिएगा,
क्यों नहीं खरीदा? थी नीलामी ऐसी न खरीदा किसी ने, मैं दीवाना तेरा मेरा क्या बचा है। मेरा नाम पूछे तेरा नाम बोलूं, मेरा नाम पूछे तेरा नाम बोलूं, जुबान से तो पूछो ये कैसी वफा है। जो ढूंढो दीवाने हजारों मिलेंगे, जो ढूंढो दीवाने हजारों मिलेंगे, मेरे जैसा पागल बता तू कहाँ है। ये दिल है मेरा या शीशे का महल है, ये दिल है मेरा या शीशे का महल है, जिधर देखता हूँ तेरा चेहरा है। लिए फिरता तुझको खुले आम दिल में, लिए फिरता तुझको खुले आम दिल में, ये फिर शोर क्यों है कि तू गुमशुदा है। मैं चाहूँ तेरा जो हो दीदार हर पल, मैं चाहूँ तेरा जो हो दीदार हर पल, मगर क्यों है पर्दा ये क्यों पहरा है। अगर रास्ते से मेरे होती है नफरत, अगर रास्ते से मेरे होती है नफरत, बता दे वो राहें मोहब्बत जहाँ है। तू नाराज है तो ये भी जान लेना, तू नाराज है तो भी ये जान लेना, बता दे वो राहें मोहब्बत जहाँ है। फकीरी में जन्नत गरीबी में राहत, फकीरी में जन्नत गरीबी में राहत, मोहब्बत का यारो यही सिलसिला है। अब ध्यान दीजिएगा, फना होने की लानते देते थे जो, फना होने की लानते देते थे जो, हुआ इश्क मुझको उन्हीं की दुआ है। मैं मंदिर में रहता, मैं मंदिर में रटता तेरा नाम अक्सर, मैं मंदिर में रटता तेरा नाम अक्सर, मोहब्बत से मेरे तभी वो खफा है। मुझे माफ करना ना पहचान पाया, मुझे माफ करना ना पहचान पाया, हूँ नादान सा इश्क भी तो नया है, हूँ नादान सा इश्क भी तो नया है। बता दो वो राहें मोहब्बत जहाँ है। सर ये पता हो तो हमें भी बता देना। बहुत सुंदर पोइट्री। रजनी पाठक, ये सुरों की मलिका है, शब्दों को सर माथे रख महफिल में जान डाल देती है। थिएटर आर्टिस्ट है, दूरदर्शन आकाशवाणी पे काम कर चुकी हैं। इनकी 2 पोइट्री बुक्स आ चुकी हैं और इनके लिए 2 पंक्तियाँ। राहें दुश्वार हैं चलो सदका कर लूँ, राहें दुश्वार हैं चलो सदका कर लूँ, ठहराया है खुदा को तुझको सदका सजदा कर लूँ। आइए रजनी जी, बहुत स्वागत। थैंक यू रेखा जी, सारी महफिल को मेरा सजदा। इश्क एक नशा है, इश्क एक नशा है, जिसका पहले उतरा वो बेवफा है। तो आती हूँ अपने धन्यवाद तो मजा आ गया। मेरी कविता है आज की मोहब्बत आजकल। कल गुनगुनी धूप को चाय पर बुलाया, कल गुनगुनी धूप को चाय पर बुलाया, उसने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया। बोली, गई थी कल पिंजौर गार्डन कुछ पुरानी यादें ताजा करने। वो खान बाबा जो वहां रहा करते थे कभी, वो खान बाबा जो रहा करते थे वहां कभी, मोहब्बत भरे गीत सुनाते थे कभी। खान बाबा को याद करते करते ढूंढने निकली वहां कोई खान साहब सा। गार्डन तो भरा पड़ा था युवाओं से, सभी मस्त नजर आए फोन पर, कुछ चख रहे स्वाद ज़ोमैटो पर। न चाहत भरी नजरें, न प्रेम गीत, न लैला न मजनू सा दिखा मीत। मन भर सा आया देख मोहब्बत की रीत, हाय ये लोग कैसे निभाएंगे प्रीत। मैं मुस्कुराई और बोली, अरे तुझे मोहब्बत का फलसफा न समझ आया, अब पहली नजर का प्यार किसी पर ना आया। जमाने ने अब आशिक को भी समझदार बनाया, नाप तोल के ही मोहब्बत का अजीब प्रस्ताव आया। नाप तोल मतलब, अरे 4P है जिसके पास, मोहब्बत आती है उसी के पास। 4P है जिसके पास, मोहब्बत आती है उसी के पास। पैकेज, प्रॉपर्टी, पर्सनैलिटी, प्रायोरिटी। हम तो गए काम से। सभी P सबको करने पड़ते हैं पास, तभी जाकर मिलता है जनाब आशिक खास, तभी जाकर मिलता है जनाब आशिक खास।
मॉडर्न टाइम में प्यार करना भी एक कला है। अगर जिसने इस टाइम में भी अगर प्यार करना सीख लिया, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा विनर है। लेकिन प्यार का रूप बदलेगा नहीं, प्यार था, है और रहेगा। हमारा जो ये इवेंट था प्यार पर, इश्क पर, फरवरी के महीने को हमने साबित कर दिया कि एक्चुअली प्यार अभी जिंदा है सभी के दिलों में। तो we have come to the end of the event, so I would like to Sunit has something and a little bit of love. Somebody is sharing. Somebody is sharing. Somebody is sharing. Okay. And it's going to And be who is that somebody? special. हवाएं चीड़ के पेड़ों की क्या आप सिर्फ सहलाते हैं? किताबों में सूखी पंखुड़ियां क्या अब भी मन महकाती हैं? आवाज मेरी जब सुनते हो किसी कविता नस्म की सूरत में, दिखता है क्या अक्स मेरा, क्या किसी शब्द की मूरत में? हवा में ठहरी हंसी कोई जब कानों से टकराती है, क्या यादें बीते लम्हों की तुमसे मिलने आती हैं? जब सावन अपने यौवन में बाहर घनघोर बरसता है, अंतर मन का कोई कोना अब भी भीगा करता है। हाँ, अब भी याद के कुपरे में लिपटे, जंगल वही, पहाड़ वही, कभी मुस्काते संग बिलखते, माघ वही, आषाढ़ वही। हाँ, बातें करता चांद वही, आंखों में चमक सितारों की, गुलशन खुशबू फूल वही, रौनक वही बहारों की। तेरी आहट की पदचाप वही, मेरी धड़कन की आलाप वही, बिन वादे बिन उम्मीद का इंतजार वही, संताप वही। जो भी मिला मोहब्बत में हर पल मैंने जिया वही, विष हो या कि अमृत हो जो तूने दिया बस पिया वही। उजला भी है, जर्द भी है, सख्त भी है और सर्द भी है, भीड़ भरी राहों में मगर तेरा दर्द हमदर्द भी है, तेरा दर्द हमदर्द भी है। और ये कौन है? cherry on the top with music, poetry. It was beautiful, Sarita ma'am. We'll let you know later. हमारे इवेंट में होस्ट रेखा मित्तल की टर्न है अब। ये इन्होंने किताबें लिखी हैं, अरे बाबा बोलने दो ना, तो लिखी है और कहानियों की, और हम में से ही ये कहानियां चुरा के ले जाती हैं। अपनी जिंदा दिली से, अपनी हंसी से हर महफिल को रोशन कर देती हैं और सेल्फी क्वीन है ये। और जहाँ भी जाती हैं इनका एक ही नज़रिया होता है कि वहाँ अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ कर जाएं। सो ये बहुत खूबसूरत बात है। मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी प्रिवेल्स व्हेन शी इज़ देयर, सो आई इनवाइट हर फॉर हर पोएट्री। हाँ, शुक्रिया। सीधे कविता पर। दिल के कोरे कागज पर तुम ही कहो मैं क्या लिखूं, दिल के कोरे कागज पर तुम ही कहो मैं क्या लिखूं, सारा पन्ना खाली छोड़कर नीचे बस अपना नाम लिखूं, किताबों में रखा सूखा गुलाब करना महसूस उसकी महक, तुम पढ़ लेना वह अनकहा सब जो मैं खुद से ना लिख सकी, पढ़ लेना वो बोलती हुई खामोशियां, पढ़ लेना वो बोलती हुई खामोशियां जिनको अल्फाज ना मिले, पढ़ लेना वो खत सारे जो पोस्ट ना हुए, पर सच कहूं मैं नहीं चाहती कि तुम वह सब पढ़ो, शायद मौन ही मुखर है। उलझने लिए मन की चली जा रही किसी डगर पर, उलझने लिए मन की चली जा रही किसी डगर पर, बरसों बीत गए मिले भी नहीं, पर कुछ तो था अदृश्य सा हम दोनों के बीच जिसे हम समझ ना पाए, अनकहा अनसुलझा सा, अनेक सवाल लिए यौवन कब हाथों से फिसल गया हम जान ही ना पाए। एक दिन मैं मिलूंगी तुम्हें जरूर, एक दिन मैं मिलूंगी तुम्हें जरूर, हाँ उसी पलाश के नीचे जहां बैठ बुनती थी मैं अपने ख्वाबों का स्वेटर,
जहाँ बैठ बुनती थी मैं अपने ख्वाबों का स्वेटर। बहुत खूबसूरत आपने स्वेटर बुना है और मुझे लगता है कि इसका डिज़ाइन गर्मी और सर्दी दोनों में चलेगा और वार्मथ जो है वो नो डाउट हमें सर्दियों में काम आएगा और उसकी ये ऑल सीजन वाली ये ऑल सीजन वो ऑल सीजन विमेन है, ये ऑल सीजन पोइटेस हो गई क्योंकि इन्होंने अपने दिल की जो बातें हैं वो खामोशी से लिखते हुए जो शब्द थे वो कोरे पन्ने पे नीचे मेरा नाम लिख देना, उसके भीतर उस कोरे पन्ने पर इन्होंने कितना कुछ लिखा है वो पढ़ने वाला ही पढ़ सकता है, जो जिसको ये खूब प्यार करें और जो वापस इनको उतना ही प्यार मिले. सो आई विश यू लव एवरीबडी, दैट यू गेट लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ as well as you keep exchanging these feelings and emotions. So I'm about to announce ma'am's name. So ma'am is about to come only then and then. नहीं मेरे अच्छा हाँ बैठिए मैं आपको बताती हूँ ये जो जितनी भी पोइट्री में बीच बीच में पढ़ रही थी वो मेरी ही थी. सो मुझे नहीं लगता कि स्पेशली सुनाने की कोई कसर बाकी है. मैंने आप सबके लिए वो पंक्तियाँ चुन चुन के निकाली थी कि आपकी पर्सनालिटी और आपकी पोइट्री दो. मेरा इश्क थोड़ा अलग है. चलो आई एम वेटिंग फॉर मैम टू कम, सो लेट हर एंटर एंड देन आई विल जस्ट स्टार्ट माय पोइट्री. दोबारा सुना देना आप भी. नहीं पता है कि जो एक बार होता है ना, आपको पता है जो फर्स्ट लव है ना, जो फर्स्ट साइट लव, जो फर्स्ट लव वो बंदा जिंदगी में भूलता नहीं. सो कोई नहीं भूलता. So I think that's beautiful. So ma'am is here. I would like to invite ma'am on stage. आपने जिक्सॉ पजल देखा है? आपने 8th क्लास में पता नहीं कौन सी क्लास में हमें डिग्री समझाते हैं, रिच रिचर रिचेस्ट है ना, ऐसे उसमें आ जाता है बिजी बिजियर बिजीएस्ट. So that goes with ma'am. फिर भी वो इतना बिजी, आई थिंक शी इज नॉट वेरी वेल ऑल्सो. सो शी हैज टेकन आउट टाइम और उन्होंने हमारे कहने पर 7th की जगह पर 8th Feb कर दिया, just because she wanted that everybody should participate. And we all know that how busy she is. Still she manages to go with momentous इसके जैसे हमारे कई events, plus Spring Fest is about to come and then Literati, the main. I think we should give her a big round of applause for all this. That हम सबको इकट्ठा कर देते हैं. Smita ma'am, we are waiting for your lovely poetry. Please come. मैंने so sorry ma'am, मैं इतनी खुश हो गई. नहीं मैंने बहुत खास पोइट्री लिखी है और ये पोइट्री ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, वैसे तो कहते हैं किसी को पूछो कि आपकी सबसे फेवरेट पोइट्री कौन सी है तो आप नहीं कह सकते. जैसे किसी बच्चे को पूछो, माँ से पूछो कि बच्चा कौन सा फेवरेट है वैसे. लेकिन ये पोइट्री somehow somewhere, yes I wrote for somebody, बताऊंगी नहीं. तेरा आना लकीरों में लिखा होगा, तेरा आना लकीरों में लिखा होगा, मेरी इबादत में यकीनन तू रहा होगा, मेरी इबादत में यकीनन तू रहा होगा. तेरी आयत हो जाने की हसरत में, तेरी आयत हो जाने की हसरत में दिल की दीवारों पे तुझको गढ़ा होगा, दिल की दीवारों पे तुझको गढ़ा होगा. सुमिता मिश्रा मैम, डॉक्टर सुमिता मिश्रा मैम, प्लीज कम. Good evening everyone, pleasure to be here. Firstly, part of the credit goes to Rekha, जिन्होंने Facebook के I think मेरे birthday wish था. She wished me on my birthday and then said बहुत दिनों से कोई evening नहीं रखी मैं. So I remembered that and then we said कि हाँ it is true, high time. ये साल शुरू हुए 1 महीना हो गया और कोई हरकत नहीं हुई, हम लोग मिले नहीं. एंड पार्ट उसका आई थिंक एक कारण जो शैली ने हिंट किया कि जस्ट हाँ टू मच गोइंग ऑन. पहली चीज़ तो आप सबको ढेर सारी बधाई.
इतनी सुंदर पोइट्री, इतने किस्म के शेड्स एंड फ्लेवर्स ऑफ लव, और उतनी खूबसूरती से जो दोनों हमारे कॉम्पेयर्स हैं, उन्होंने हर एक के इंट्रोडक्शन में जो मेहनत की है वो नज़र आ रही थी, वो मेहनत भी और उससे भी ज़्यादा वो मोहब्बत भी। तो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटिफुली कंडक्टेड इवनिंग। एक एक की तारीफ करना तो मुश्किल है, बट आई हैव एंजॉयड ईच एंड एवरी पोएम, एंड मुझे खुशी है कि ज़्यादातर पोएम्स बहुत ज़्यादा दुखी नहीं थी क्योंकि अक्सर ये लगता है कि मोहब्बत फ्लैशबैक में काश होता है, आकाश और अगर, और जो दिल जलता है एक्सेट्रा। तो बट इट्स बीन अ ब्यूटीफुल इवनिंग, एंड वो निदा फाजली साहब का शेर है ना कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। तो यही ख्याल था आज की शाम का इस थीम का, नॉट जस्ट वैलेंटाइंस डे, क्योंकि हम लोग इतने भी अंग्रेज नहीं है कि हर चीज़ का एक दिन नियत किया हो, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइंस डे। हम लोग इस मामले में मैं समझती हूँ कि ज़्यादा रईस हैं, और कभी भी कुछ भी हर चीज़ इफरात में मनाते भी हैं, महसूस भी करते हैं। अब क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी कुछ सुनाना चाहिए, बट फिलहाल इश्क कुछ प्रायोरिटीज में नीचे से चल रहा है। काम से ज्यादा इश्क हो गया। तो इश्क अपने से भी होना जरूरी है थोड़ा, और इसलिए मेरी कविता थोड़ी सी जग से प्रेम के बारे में है, पर उससे ज़्यादा अपने अंदर वो जो एक हम मोहब्बत क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कोई दूसरा हमारे अस्तित्व को वो वैलिडेशन दे रहा है, वो हमें देख पा रहा है और हमारे खिलाफ को भर रहा है। बिल्कुल। सो दैट एक्ट ऑफ विटनेसिंग द अदर is the supreme validation that love gives to our existence. फिर एक दौर आता है कि आपको लगता है कि हाँ, ये हम अपने लिए कर सकते हैं, ये हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, एंड वो भी एक बहुत सुखद एहसास है। तो ये कविता है जो हमने हाल में लिखी है, शुक्रिया। बरसों से चुपचाप हम अपने अंदर, बरसों से चुपचाप हम अपने अंदर, हम एक नया सूरज उगा रहे हैं। भोर के मन में भर लालिमा, भोर की मन में भर लालिमा, तमस का क्षेत्र घटा रहे हैं। माता पिता ने कहा कुछ बनना है तो सूरज बनो, सो हम अपने किरदार को सूरज बना रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा आई थिंक फेमिनिज्म का इशारा है। बिन दावे बिन दलील, बिन दावे बिन दलील बिन इजाजत, हम एक नया सूरज उगा रहे हैं। बिन दावे बिन दलील। किसी का चांद आज भी है, किसी का चांद आज भी है, पर ये शोखियां अलग हैं जो नया सूरज उगा रहे हैं। शोखियों में घोला जाए। मुट्ठी भर निस्वार्थ प्रेम के बीच से, मुट्ठी भर निस्वार्थ प्रेम के बीच से, हम उजालों की खेती बढ़ा रहे हैं। कोई करे खयानत की कारोबारी तो करे, कोई करे खयानत, डिसऑनेस्टी, कोई करे खयानत की कारोबारी तो करे, हम रोशनी के खालिस सिक्के चला रहे हैं। ये किसी स्याह रात में लुप्त नहीं होता, ये किसी स्याह रात में लुप्त नहीं होता, हम ऐसा अनंत सूरज उगा रहे हैं। हृदय की गुफा में चमकता दिन रात, हृदय की गुफा में चमकता दिन रात, हम सच्चे तेज का सूरज उगा रहे हैं। और आखिरी लाइनें, हाँ, अंधेरों में किरणों से खेले हैं हम भी,
हाँ, अंधेरों में किरणों से खेलें हम भी, जैसे हम जब डिस्पॉन्डेंसी में खोजते हैं थोड़ी सी रोशनी। अब निडर स्वयं में ही नया सूरज उगा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। इसी सूरज की रोशनी में हम सब यहाँ इकट्ठा होते हैं, चलते हैं, और मुझे लगता है ये कुछ रेस जो सूरज की हैं वो मैम पर, ये जो मैम की जो, इफ वी कंसिडर मैम एज सन, और सन की सारी रेज, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसे प्लान किया कि हम इकट्ठे मिल लेंगे, ये मिलेंगे। शी हैज स्टार्टेड दिस जर्नी एंड वी आर कमिंग एंड एंजॉइंग ऑल द इवेंट्स, celebrating love or celebrating all the festivities. Whenever it happens, I think it brings love and affection as well as happiness in our hearts, and that the credit goes to ma'am. And a few lines I will dedicate to you, last one, and after that this event will be ended. So सोच की पेशानियां परेशान है कहानियां, बवाल बेतरतीब है कोटर में ज्यों की लहरियां। काफिर दिल का सवाल है इश्क का जो जमाल है, गिरहा में जब सज गया गुम हुई विरक्तियां। जुगनुओं सी चाहते बेसबब नहीं आहटे, ओढ़े रंग है चल रही एहसास की तसल्लियां। ताउम्र का ये साथ है धूप सनी कोई बात है, सांसों पर एहसान है वादों की सरगोशियां। तो अगले बार मिलने का वादा के साथ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लवली प्रेजेंस। थैंक यू अफान, थैंक यू ऑल द पॉइंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस। यार इश्क मोहब्बत, thank you so much, and I think everybody should be there to have a piece of cake also. I love the very और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, कौन गा रहा था? बार बार ये दिन आए, 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 तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। Happy birthday to Sunita ma'am, happy birthday to Sunita ma'am, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday